زمان پارک کے باہر آپریشن کی تیاریاں، کینال روڈ پر نظم خیمے اکھاڑے جائیں گے۔ پولیس کی نفری اور ضلع انتظامیہ موقع پر موجود۔ پی ٹی آئی کی مقامی قیادت نے کارکنوں کو زمان پارک پہنچنے کی بھی کال دے دی۔ پی ٹی آئی کارکنوں اور انتظامیہ میں اس وقت قبل جھگڑا ہو چکا ہے۔ اس بارے میں مزید تفصیلات جانتے ہیں لیاقت علی سے۔ لیاقت، بتائیے گا۔ جی بالکل، عمران خان کی رہائش گاہ زمان پارک کے باہر اس وقت پولیس اور ضلع انتظامیہ کی جانب سے آپریشن کی تیاری کی جا رہی ہے اور کنار روڈ کو جو لگے ہوئے خیمے ہیں ان کو اٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پولیس اور ضلع انتظامیہ موقع پر موجود ہے اور پولیس کی مزید نفری بھی زمان پارک میں بلائی گئی ہے۔ کارکنوں اور ضلع انتظامیہ کے درمیان اس سے قبل بھی ہنگامہ رائی ہوئی تھی جب ضلع انتظامیہ بینر، فلیکس، تصاویر اتار رہی تھی، تو اب پی ٹی آئی نے جو ہے وہ ایک بار پھر کارکنوں کو زمان پارک پہنچنے کی کال دے دی ہے۔ صدر پی ٹی آئی لاہور شیخ امتیاز کا کہنا ہے کہ تمام جو ورکر ہیں جلدی سے زمان پارک پہنچیں۔ جو پولیس کی جانب سے زمان پارک کی سیکورٹی کے لیے جو خالی کو اکھاڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان شام کو اسلام آباد سے واپس پہنچ جائیں گے اور اس وقت اگر ہم تازہ ترین صورتحال بتائیں تو پھر پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی جانب سے روڈ پر موجود جو تمام کیمپ ہیں ان کو ہٹا کر گرین بیلٹ پر شفٹ کرنے کا یہ فیصلہ سامنے آیا ہے۔ تمام کیمپ انتظامیہ کی مدد سے روڈ سے ہٹا دیے جائیں گے اور کیمپ روڈ پر ہونے سے ٹریفک کی روانی متاثر ہو رہی تھی۔ روڈ پر موجود تمام کیمپ جو ہے اب ہٹا کر زمان پارک کے ساتھ جو گرین بیلٹ ہے وہاں پر شفٹ کرنے پر اتفاق کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے لیاقت، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ہمیں جوائن کیا ہے زین علی نے، ہم ان سے بات کریں گے۔ زین، اب آپ بتائیے گا کہ زمان پارک کے باہر کیسی صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں؟ جی بالکل، صبح سے ہی آپریشن کلین اپ کے سلسلے میں لاہور انتظامیہ نے کے سلسلے میں لاہور انتظامیہ پولیس اور پی ٹی آئی کارکنان کی جانب سے وقفے سے تصادم جو ہے وہ جاری ہے۔ جیسے ہی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان زمان پارک سے روانہ ہوئے اس سے کچھ ہی دیر بعد پولیس کی جانب سے یہاں پر جو قائم کی گئی تھی سیکیورٹی حصار جو لگائے گئے تھے وہ یہاں سے ہٹانا شروع کر دیے، جبکہ جس کے ساتھ ساتھ مورچے اور جو خاردار تاریں وہ بھی یہاں سے ہٹانا شروع کر دی گئی تھی۔ تقریباً 50 کے قریب حصار سیکیورٹی حصار تھیں، 12 مورچے تھے اور اس کے ساتھ خاردار تاریں تھیں وہ یہاں سے ہٹا کر پولیس کی 3 گاڑیاں یہاں پر آئی تھیں جن کو ان پہ رکھ کر یہاں سے لے جایا جا رہا تھا، جبکہ اس سے کچھ ہی دیر بعد پی ٹی آئی کی لاہور انتظامیہ کی جانب سے جو ہے اچانک آپریشن کلین اپ کے لیے لاہور زمان پارک کے باہر جو کیمپ قائم کیے گئے تھے لاہور پی ٹی آئی کے مختلف رہنماؤں کی جانب سے ان کو ہٹانے کے لیے لاہور کی انتظامیہ کی گاڑیاں آئی تھیں۔ جیسے ہی وہ بینرز اتارنے شروع کیے اور اتنی ہی دیر میں پی ٹی آئی کے جو ڈنڈا بردار کارکن تھا وہ وہاں پر پہنچے، انہوں نے انتظامیہ کی گاڑیوں پر انتظامیہ کے جو ملازمین تھے، سرکاری ملازمین تھے، ان پہ ڈنڈے برسانا شروع کر دیے تھے۔ انتظامیہ نے یہاں پہ جو زمان پارک کے باہر لگائے گئے تھے بینر، فلیکسز اور کیمپ قائم کیے گئے تھے ان کو ہٹانا شروع کر دیا تھا۔ اس موقع پر جو پی ٹی آئی کے جو کارکنان تھے انہوں نے ڈنڈے کی زور پر جو ہے انتظامیہ کو وہاں سے بھاگنے پر مجبور کیا تھا۔ اسی سلسلے میں جو انتظامیہ کے جو ملازمین تھے وہ یہاں سے بھاگ چکے تھے، جبکہ پولیس جو کھڑی جو وہ تماشائے دیکھ رہی تھی، جبکہ اس کے بعد بھی اب پولیس کی اس وقت بھی 4 جو وہ زمان پارک پہنچ چکی ہیں اور وہ کہا یہی جا رہا ہے کہ جو لاہور پولیس ہے وہ کیمپ جو قائم کیے گئے زمان پارک کے باہر ان کو یہاں سے ہٹائے گی، اور جو زمان پارک کے باہر جو ہے جو زمان پارک کے باہر جو قائم کی گئی تھی پی ٹی آئی کارکنان کی جانب سے جو ہے قائم کی گئی تھی ان کو جو سا ہٹانے کے لیے یہاں پہ آپریشن جو ہے وہ کیا جائے گا۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا زین، آپ ہمیں اس بارے میں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ چیئرمین ایپما پنجاب حامد زمان ٹیکسٹائل انڈسٹری مسائل بارے پریس کانفرنس کر رہے ہیں، آپ کو براہ راست لے چلتے ہیں۔ کیپٹا ٹیکس اینڈ جی ایس ٹی ٹو دا کنٹری، اور 17% جی ایس ٹی ہمارے پہ لگتا ہے اور 35% ہمارے پہ ٹیکس لگتا ہے، تو آپ یہ سوچ لیں کہ کتنا ہمارا امپورٹنس ہے۔ ہمارا جو ورک فورس ہے تقریباً 14 ملین کی ورک فورس ہے ان 2 شفٹس، تو اگر ہم ایک شفٹ بند کر دیں تو آپ سوچیں کہ اس کی ان امپلائمنٹ کتنی ہوگی، اور اگر ریٹیلنگ بند ہو جائے تو ہماری انڈسٹری کو کتنا جھٹکا پڑے گا جب ڈیمانڈ آگے سے کم ہو جائے گی۔ اچھا، رہی بات 8:30 PM بندش کرنا، تو ایک اور بات جو میں کرنا چاہ رہا تھا یہ کہ یہ ایک غلط تاثر ہے کہ اگر ہم جلدی دکانیں بند کر دیں گے تو الیکٹریسٹی ہم بچا لیں گے۔ یہ 2 طریقے سے غلط ہے۔ آج کل جتنی بھی مارکیٹ ہے، آپ دن کو جائیں تو اتنے ہی بلب جلے ہوتے ہیں، بلکہ گرمیوں میں تو ایئر کنڈیشننگ ڈبل پہ چل رہی ہوتی ہے، اور آپ شام کو جائیں تو بھی اتنے بلب اور اتنی، تو یہ ایک غلط چیز ہے کہ آپ کی رات کو بجلی زیادہ
इस्तेमाल होती है। आपने अगर आवर्स काम करने हैं, आप सुबह 12 बजे खोल लें और रात को आप 10 बजे बंद करें, आपके आवर्स उतने ही होंगे, आपकी बिजली की कंजम्पशन ज़्यादा नहीं होगी बाय ओपनिंग लेट आवर्स इफ़ यू स्टार्ट ओपनिंग एट लेट आवर्स। तो ये भी एक चीज़ है। और दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आगे आ रहा है रमज़ान। रमज़ान हमारा जो है इट इज़ आर पीक पीरियड फॉर सेलिंग। रमज़ान और ईद पे 30 से 40% सारे साल की जो सेल होती है हम रमज़ान और ईद पे करते हैं। और रमज़ान ये गुफ्तगू आपने एडवाइज़र की। और अभी आपको बताएं, पीटीआई रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद की ज़मान पार्क से बैरियर्स हटाने की मज़म्मत। कहती हैं कि इमरान खान की जान को शदीद ख़तरा लाहक है। तहरीक इंसाफ ने हमेशा आइन और कानून के दायरे में रहकर जद्दोजहद की है। इंतकामी कार्रवाइयों के बावजूद भी सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ा जाएगा। उनका मज़ीद क्या कहना है जानते हैं लियाकत अली से। लियाकत, बताइएगा। बिल्कुल, पीटीआई सेंटर पंजाब मिनिस्टर डॉक्टर यास्मीन राशिद ने जो है वो ज़मान पार्क के तरफ से बैरियर हटाने की मजम्मत की और कहा कि इमरान खान की जान को खतरा है और वो अपनी जान खतरे को डालकर अदालतों में पेश हो रहे हैं। पूरी कौम की नजरें आला अदालत पर लगी हुई हैं। इंशाअल्लाह इमरान खान हर मैदान में सुरखरू होंगे। उन्होंने कहा कि इंतजामिया का काम है कि इमरान खान सिक्योरिटी को यकीनी बनाए, लेकिन इसके बरक्स जो है वो सिक्योरिटी को हटाया जा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया लियाकत, हमें अपडेट कर रहे थे। इमरान खान के प्लस्तर ने आलमी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। उनके अपने बच्चे लंदन में, दूसरों के जेलों में हैं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मोहसिन शाह नवाज रांझा के इमरान खान पर लफ्ज़ी गोलाबारी। बोले, इंतखाबात से कबल तराजू के 2 पलड़े बराबर होने चाहिए। इमरान खान की जमानत खारिज हो चुकी। इस्लामाबाद पुलिस से गुजारिश है इमरान खान को गिरफ्तार किया जाए। इमरान खान ने पिछली तारीख पे कहा कि मैं इस तारीख पे पेश हूँगा और बाबर अवान साहब ने अंडरटेकिंग दी कि अगर वो पेश नहीं होते तो वो अपनी ज़मानत की दरख्वास्त विड्रॉ कर लेंगे। प्लस्तर का बहाना तो ख़त्म हुआ, क्योंकि दुनिया का वाहिद प्लस्तर था जो प्लस्तर दुनिया के तमाम आलमी रिकॉर्ड को तोड़ गया और 6 से 8 हफ्ते के ऊपर इस तवील अरसे पे इस प्लस्तर की मुद्दत जो है वो पूरी दुनिया को देखने में आई कि किसी शख्स को जब गोली लगती, पता नहीं गोली है भी कि नहीं है। क्योंकि मैंने तो आज ये भी सेशन कोर्ट में दरख्वास्त की थी कि आप इमरान खान का तिबी मुआयना करवाएं, क्योंकि मुझे ऐन यकीन है कि ये गोली के ज़रे नहीं है। और क्योंकि मेडिकल नहीं हुआ, मेडिकल लीगल जिस कानून के दायरे के अंदर तरीकाकार के मुताबिक होना चाहिए था वो मेडिकल नहीं हो सका। और निगरान वज़ीर आला पंजाब ने अकबर चौक फ्लाईओवर मंसूबे का संगे बुनियाद रख दिया। कहते हैं कि इलेक्शन इन्होंने नहीं करवाना। जेल भरो तहरीक में पंजाब की जेलों में कितने कारकुन हैं, मुझे असल तादाद मालूम नहीं। सैयद मोहसिन नकवी ने मंसूबे को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए तजावीज़ भी दी। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। निगरान वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी ने अकबर चौक रिमॉडलिंग मंसूबे का संगे बुनियाद रख दिया। तकरीब से खिताब करते हुए मोहसिन नकवी का कहना था कि इलेक्शन उन्होंने नहीं करवाना। इमरान खान को सिक्योरिटी दी जाती है, जब वो वापस आएंगे तो सिक्योरिटी भी दे देंगे। जेल भरो तहरीक में तहरीक इंसाफ के कितने कारकुन हैं, हकीकी तादाद मुझे मालूम नहीं। टोटल नंबर तो मुझे नहीं पता, वो होम डिपार्टमेंट आपको कहेंगे तो इशू भी कर देगा। और बाकी शहरों में डेफिनेटली यहाँ पे गुंजाइश का भी मसला है। हम तो और था कि बहुत ज़्यादा नंबर होंगे तो उसके हिसाब से इन्होंने अरेंजमेंट बाकी जेलों में भी किया हुआ था, उस हिसाब से वो लोग उनको मूव कर रहे हैं। मोहसिन नकवी ने मजीद कहा कि लाहौर की बेहतरी के लिए इकदाम कर रहे हैं। हॉर्स एंड कैटल शो 90 करोड़ में होना था, इसलिए मुअख्खर कर दिया गया है। हॉर्स एंड कैटल शो बहुत महंगा पड़ रहा था, तकरीबन 90 करोड़ का पड़ रहा था। हमने स्पॉन्सर्स की कोशिश की, वो इतने ज़्यादा नहीं मिल सके। जश्न बहारा हो रहा है, उसमें बहुत ज़्यादा लाहौर में फेस्टिवल्स होंगे इंशाल्लाह ताला, और वो भी 100% हम स्पॉन्सर्स के साथ कर रहे हैं, गवर्नमेंट का कोई पैसा नहीं लगा रहे। तो हॉर्स एंड कैटल शो करना मुनासिब नहीं था। 90 करोड़ रुपया बहुत ज़्यादा रकम है। DGLD आमिर अहमद खान ने मंसूबे से मुतालिक ब्रीफिंग देते हुए कहा कि 30 करोड़ रुपए की बचत पहले ही कर ली गई है। मंसूबे से कोई दरख्त कटेगा और ना ही ट्रैफिक एक दिन के लिए बंद होगी। हम केटर फॉर करेंगे सर सारे इसको, इसमें ट्री कटिंग का कोई एलिमेंट नहीं है सर। यू बीइंग ए वेरी एविड एंड वेरी रिनाउंड लाहौरी सर, आपके लिए ये चीज़ बड़ा बायस फ़ख्र होगी। इस प्रोजेक्ट में एक भी दरख्त नहीं काटा जाएगा सर। उसके साथ सर जो है इसमें एक दिन के लिए भी ट्रैफिक नहीं रोकी जाएगी। दिस इज़ अ वेरी कमर्शियल कॉरिडोर जो कि सेंट्रल लाहौर को सदर्न लाहौर के साथ जो है कोऑर्डिनेट करता है। निगरान वज़ीर आला ने मंसूबा 90 रोज़ में मुकम्मल करने की हिदायत कर दी।
मौसम का अहवाल कुछ यूं है कि शहर लाहौर का मौसम हुआ औसम। सुबह सवेरे होने वाली हल्की बारिश और ठंडी हवा चलने से दर्जा हरारत में कमी सामने आई है। शहरी दिलफरेब मौसम से लुत्फानंदोज निकल आए। पीडीएमए ने आज से जुमेरात तक मजीद बारिश की पेशगोई कर दी। शहर के मौसम की सूरत हाल बता रही हैं सामिया सईद। जी सामिया, बताइएगा। मौजूद हूँ किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज के जिना ऑडिटोरियम में और यहाँ पर एक वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। वर्कशॉप का जो मकसद था वो लोगों को थोरेसिक सर्जरी के बारे में गाइड करना था। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर प्रोफेसर आमिर महमूद, इनसे बात करते हैं। इस वर्कशॉप का मकसद ये है कि हमने हर डॉक्टर को, ये सिर्फ चेस्ट सर्जन के लिए नहीं ज़रूरी, ये वर्कशॉप ने कराई है चेस्ट ट्यूब डालने का तरीका जिसमें समझाया गया है। ये सिर्फ चेस्ट सर्जन को नहीं पता होनी चाहिए बल्कि फिजिशियंस को और हर डॉक्टर जो मर्जी फील्ड का हो उसको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि किस तरह डालते हैं। बिकॉज ये एक एमरजेंसी प्रोसीजर होता है यूजुअली। जिस वक्त फेफड़ा फट जाता है तो उसका ये इलाज है कि हम इसको ट्यूब डाल के उसके फेफड़े को दोबारा फैलाने की कोशिश। सऊदी सिविल एविएशन अथॉरिटी ने ममलकत में दाखिले के लिए नया सफरीनामा हिदायतनामा जारी कर दिया। सऊदी एयरलाइन समेत तमाम तर एयरलाइंस को नए सफरी हिदायतनामे पर सख्ती से अमल दरामद करने की हिदायत भी दे दी गई। सऊदी सिविल एविएशन अथॉरिटी ने मुसाफिरों के पास पासपोर्ट और वीज़ा की स्कैन कॉपी होना लाजिम करार दे दिया है, जबकि एयरलाइन इंतजामिया वीज़े पर पासपोर्ट के मुताबिक तफसीलात दर्ज ना होने की सूरत में मुसाफिर को बोर्डिंग पास जारी ना करे। गलत दस्तावेज़ात पर सफ़र करने वालों की रिहायशी और वापसी के अखराजात एयरलाइन इंतजामिया बर्दाश्त करेगी और अगली ही परवास पर वापस भिजवाने की पाबंदी भी होगी। इस हवाले से तमाम तर एयरलाइंस अपने अमले को तरबियत करें। खिलाफ वर्जी की सूरत में एयरलाइन जुर्माना भी अदा करेगी। फिल्ट्रेशन प्लांट्स की मुरम्मत और बहाली का मंसूबा। फिल्ट्रेशन प्लांट्स की जिम्मेदारी किस इदारे की है, फैसला ना हो सका। एक साल से ज़्यादा अरसा गुजरने के बावजूद फिल्ट्रेशन प्लांट्स पर इदारों की अदम तवज्जुही। आब पाक अथॉरिटी ने पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के फिल्ट्रेशन प्लांट्स पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। मज़ीद डिटेल्स जानेंगे ज़ैनुल आबदीन से। ज़ैन, आगाह कीजिएगा कि फिल्ट्रेशन प्लांट्स की मुरम्मत और बहाली का मंसूबा तो बनाया गया, लेकिन इन फिल्ट्रेशन प्लांट्स की जिम्मेदारी किस अदारे के पास है, ताहाल पंजाब हुकूमत के इदारे इस हवाले से हतमी फैसला नहीं कर सके। यही वजह है कि एक साल से ज़ायद अरसा गुजरने के बावजूद फिल्ट्रेशन प्लांट्स पर इदारों की अदम तवज्जुही है और ये अदम तवज्जुही के सबब फिल्ट्रेशन प्लांट्स का मामला तूल पकड़ रहा है। पंजाब हुकूमत की जानिब से इस अमल का फैसला किया गया था कि तमाम फिल्ट्रेशन प्लांट्स आब पाक अथॉरिटी के हवाले किए जाएंगे, लेकिन 6 जून 2022 के फैसले पर जारी होने वाले मीटिंग मिनट्स के बावजूद आब पाक अथॉरिटी अभी तक इन फिल्ट्रेशन प्लांट्स की जिम्मेदारी लेने से आरी नजर आ रही है। हुकूमती अदारे फिल्ट्रेशन प्लांट्स का चार्ज लेने के बजाय एक दूसरे पर जिम्मेदारियां डाल रहे हैं, जिसकी वजह से शहर लाहौर में साफ पानी की फराहमी के हवाले से ये एक बड़ा बहरान पैदा हो चुका है। आब पाक अथॉरिटी ने फिल्ट्रेशन प्लांट को तहवील में लेने से कबल थर्ड पार्टी ऑडिट करवाने का फैसला किया था, लेकिन अभी तक ना तो इसका थर्ड पार्टी ऑडिट करवाया गया है और ना ही इनकी मुरम्मत का काम करवाया गया है, जिसके बाद शहर में लगे पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के 206 जो फिल्ट्रेशन प्लांट्स हैं, इनका मुस्तकबिल खतरे में पड़ चुका है और आब पाक अथॉरिटी की जानिब से मुसलसल इन फिल्ट्रेशन प्लांट्स पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है। मौजूदा सूरत हाल में शहर लाहौर के मुख्तलिफ मुकामात पर नस्बशुदा 350 से ज्यादा फिल्ट्रेशन प्लांट्स हैं जो कि मुकम्मल तौर पर बंद हैं और इससे लाहौर के बाकी मुस्तफीद नहीं हो पा रहे। जी ठीक है ज़ैनुल आबदीन, आपका शुक्रिया। और फ़ज़ाई आलूदगी और स्मोक की रोकथाम के लिए इक़दामात। महकमा माहौलियात ने 5 एंटी स्मोक स्क्वाड्स की तश्कीलें नौ कर दी। एंटी स्मोक स्क्वाड्स फ़ज़ाई आलूदगी का बाइस बनने वाले यूनिट्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। मज़ीद जानते हैं अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर से रब्ता बहाल करेंगे। अभी आपको बताया जा रहा है महकमा माहौलियात ने 5 एंटी स्मोक स्क्वाड्स की तश्कीलें नौ कर दी। एंटी स्मोक स्क्वाड्स फ़ज़ाई आलूदगी का बाइस बनने वाले यूनिट्स के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। कई साल बाद भी असातिज़ा के पे प्रोटेक्शन का मामला हल ना हो सका। कॉलेज असातिज़ा की तनख्वाहों से माहाना 30,000 रुपये तक कटौती जारी है। मसला ना हल होने से 6,000 असातिज़ा मुतासिर हो रहे हैं। ये मामला अब तक इल्तवा का शिकार क्यों है, जानेंगे आतिफ परवेज से। जी आतिफ। बिल्कुल, ये महकमा हायर एजुकेशन की सुस्ती है जिसकी वजह से जो कॉलेज असातिज़ा हैं उनको पे प्रोटेक्शन नहीं मिल सकी और ये 10 साल से जो है अपने मुतालबे के लिए एहतजाज कर रहे हैं, अदालतों में भी गए हैं, लेकिन इनकी बात नहीं सुनी गई। 1 साल कबल जो है वो महकमा स्कूल एजुकेशन से मुज़ाकरात हुए जिसके नतीजे में
तमाम डायरेक्टर कॉलेजेस को कहा गया कि पे प्रोटेक्शन देने के लिए जो फंड लगने हैं उसका तखमीना लगाकर भिजवाया जाए। तो तखमीना लगने के बावजूद जो है असातिज़ा को उनकी पे प्रोटेक्शन नहीं मिल रही, जिसकी वजह से 30,000 रुपये तक माहाना उनकी तनख्वाहों से कटौती हो रही है। और असातिज़ा का कहना है कि अगर उनके जल्द मुतालबे को तस्लीम नहीं किया जाता तो फिर एक दफ़ा वो एहतजाज करने पर मजबूर हो जाएंगे। जी ठीक है आतिफ परवेज़, आपका शुक्रिया। और मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल करने वाले 5 DSPs के एजाज़ में तकरीब। CCPO लाहौर बिलाल सदीक कमियाना की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। सीनियर अफसरान ने DSPs को एजाज़ी शील्ड और गुलदस्ते दिए। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मुदस्सिर हुसैन से। मुदस्सिर, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, लाहौर पुलिस के रिटायर होने वाले 5 DSP के एजाज़ में तकरीब जो है वो मुनक्कद की गई। इसके लाहौर बिलाल सदीक कमियाना तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। SSP एडमिन शाकिर शानदावर, इसके अलावा SSP एडमिन आतिफ नज़ीर, SSP लीगल अगराम से अंजान ने जो है वो तकरीब में शिरकत की। DSP इंटेलिजेंस रेहान जमाल, PSO2 DSP काशिफ डोगो समेत दीगर अफसरान भी थे, वो भी तकरीब में शरीक थे। रिटायर होने वाले DSP कौसर परवीन, रेसाना कौसर, DSP इमरा तबस्सुम जो है वो भी तकरीब में शरीक हुई। इसके अलावा रिटायर होने वाले DSP में जुल्फ़कार अली और DSP मोहम्मद नईम मिरत भी तकरीब में जो है वो शरीक हुए। इसके अलावा बिलाल सदीक मैंने ने DSP की मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल होने पर उनको मुबारकबाद दी। बिलाल सदीक मैंने ने DSP की आइंदा ज़िंदगी के लिए भी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इसके अलावा बिलाल सदीक मैंने ने सीनियर अफसरान ने DSP को आज़ादी शील्ड और फूलों के गुलदस्ते भी पेश किए। सिलसिला लाहौर पुलिस ने DSP के लिए ग्रांट इमरात को भी सराहा। इसके लाहौर बिलाल सदीक मैंने के इस वजह से कहना था कि रिटायर होने वाले अफसरान इंतहाई बासियत और प्रोफेशनल इंसान थे। बिलाल सदीक मैंने ने मजीद कहा कि रिटायर्ड DSP की महफिल पुलिस को ली खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। इसके लाहौर ने कहा कि पुलिसिंग हमारे ईमान का हिस्सा और सबकी खुदा की खिदमत है और ये आइंदा भी जो मिशन है वो हम जारी रखेंगे। DSP नेशनल पुलिस के गाजियाँ लाहौर पुलिस पे इनका खिलाफ जो है हमेशा महसूस किया जाएगा, इनकी कमी को हमेशा महसूस किया जाएगा। दौरान मुलाजमत मसाइल के साथ बहुत चैलेंजेस भी जो है पुलिस को आते हैं, लेकिन पुलिस अफसरान उन चैलेंज को जो है वो लिमिट कर पुलिसिंग करते हैं। इस वजह से DSP ने दौरान मुलाजमत भरपूर रहनुमाई और सफाई करने पर इसके लाहौर और सीनियर अफसरान का जो है वो शुक्रिया अदा भी किया। रिटायर होने वाले अफसरान ने महकमा पुलिस में कलीदी उहदों पर खिदमात जो है वो अंजाम दी। शुक्रिया आपका मुदस्सिर। गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज फॉर वुमेन गुलबर्ग का नोवा कॉन्वोकेशन BS सेशन 2018-2022 की तालिबात को डिग्रियां और मेडल्स दिए गए। कॉन्वोकेशन के मेहमान खुसूसी सेक्रेटरी हायर एजुकेशन जावेद अख्तर महमूद थे। आतिफ परवेज़ से मजीद जानेंगे। जी आतिफ। जी बिल्कुल, गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन गुलबर्ग का नोवा कॉन्वोकेशन की तकरीब जो आज मुनक्किद हुई है, जिसमें 2018-22 सेशन में डिग्री मुकम्मल करने वाली तालिबात को डिग्रियां और मेडल से नवाजा गया। कॉन्वोकेशन के मेहमान खुसूसी जो है सेक्रेटरी हायर एजुकेशन थे, जिसमें उनके साथ साथ जो है DPI कॉलेज डॉक्टर आशिक हुसैन, डायरेक्टर कॉलेज शहजाद मुनव्वर भी मौजूद थे। और इस मौके पर 3 गोल्ड मेडल, 3 सिल्वर और 3 जो है वो स्वाइम पोजीशन और 49 के रोल ऑफ ऑनर जो है वो दिए गए। इस मौके पर खिताब करते हुए सेक्रेटरी हायर एजुकेशन का कहना था कि वो कामयाब होने वाले तालिबात को मुबारकबाद देते हैं। तलबा का रोल मॉडल वालिदैन और साथ होने चाहिए। दुनिया का हर इंसान तरक्की कर सकता है, वक्त कभी किसी का इंतजार नहीं करता, इसे ज़ाया मत करना चाहिए और हमेशा सही वक्त पर सही फैसले करने चाहिए। जी ठीक है आतिफ परवेज़, आपका शुक्रिया। और LDA सिटी के 1153 प्लॉट्स की कुलअंदाजी कर दी गई। DG LDA आमिर अहमद खान का कहना है कि इस साल के इख्तिताम तक लोग अपने घर बना सकेंगे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं, हमने रब्ता किया है हमारा नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ ज़ैनुल आबदीन से। ज़ैन बताइएगा। LDA सिटी के फ़ाइल होल्डर्स के लिए ये अच्छी खबर है कि अरसा दराज से जो इंतज़ार करते आ रहे थे कि कब कुरानदाजी होगी, आज उनके लिए अच्छी खबर सामने आई है कि LDA की चौथी कुरानदाजी का इनेकाद LDA स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स जोहर टाउन में हुआ, जिसमें DG LDA आमिर अहमद ख़ान और LDA के दीगर अफसरान की जानिब से शिरकत की गई। DG LDA हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। सर देखें, ये स्कीम हमारा जो है एक हाइब्रिड मॉडल आया था, जो कि हमने सब बेस्ट प्रैक्टिसेस जो थी हाउसिंग सेक्टर के अंदर वो ली थी। और जब इसको शुरू किया गया तो शायद जो आजकल जो पॉल बेरर है हाउसिंग सेक्टर में वो DHA है, हमारी ख्वाहिश थी कि हम उससे भी एक स्टेप आगे जाएँ। हमने कोशिश की, उसमें कुछ इश्यूज़ आए, आपको भी उनका इल्म है।
मगर उससे शायद इसकी शफाफियत के ऊपर कोई सवाल अगर उठना था तो वो भी उससे एक हमें फ़ायदा लिया। हम चीज़ों को पॉजिटिवली लेते हैं। लोग घर कब बनाएंगे? लोगों का ये ख्वाब है कि हम एलडीए सिटी में अपना घर बनाएं। आप कोई टाइमलाइन वज़ा कर सकते हैं इस वक्त? हमारा ये इस दफ़ा की पूरी काविश है, एक तो हमारी वहाँ पे स्कीम पे एक्विजिशन की जो मिसिंग लिंक्स थे उसके लिए हमने भी अवार्ड किया है 2000 कनाल जगह का। इंशाल्लाह वो हमारे पास जल्द आ जाएगी सर, फाइनल स्टेजेस पे है। दूसरा सर, हमारी इलेक्ट्रिफिकेशन का प्रोसेस चल रहा है, हम पैसे भी दे चुके हैं। हम ग्रिड स्टेशन के 32 करोड़ रुपया दे चुके हैं, लेस्को को, नेफ्टा को पैसे दे चुके हैं। हम ये इन्विज़िज कर रहे हैं कि ये तमाम के तमाम जो हमारे डेवलपमेंट रिलेटेड इश्यूज़ हैं, ये जो सेक्टर्स जिनके मैंने नाम लिए ये जून तक हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया डीजी एलडीए आमिर अहमद खान की, आपने गुफ्तगू सुनी। एक तो एलडीए सिटी के अलॉटियों के लिए अच्छी खबर है कि कुरानंदाजी कर ली गई है, दूसरा नक्शे भी पास कर देंगे ताकि वहाँ पर लोग अपने घर बनाना भी शुरू कर दें। जी शुक्रिया जैन। वेलकम बैक। अब आपको बताएं कि यूटिलिटी स्टोर्स भी महंगाई की चक्की में फिर से आवाम को रिलीफ न दे सके। सस्ते स्टोर से सब्सिडाइज्ड घी 2 माह से गायब है। शहरी ओपन मार्केट से महंगा घी और कुकिंग ऑयल खरीदने पर मजबूर हो गए। अब्दुल कादिर की रिपोर्ट देखिए। मुंह जोर महंगाई ने गरीब की कमर तोड़ दी। ओपन मार्केट में घी की कीमतों में मुसलसल इजाफा। यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडाइज्ड घी नायाब हो गया। वफाकी हुकूमत की अदम दिलचस्पी के बायस सार्फिन 2 माह से सब्सिडी से महरूम हैं। ओपन मार्केट में दर्जा अव्वल घी 700 रुपए किलो और कुकिंग ऑयल 720 रुपए फी लीटर तक जा पहुंचा। दर्जा दोम घी 600 रुपए फी किलो तक मिल रहा है। यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडाइज्ड घी की फी किलो कीमत 375 रुपए, जबकि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम कार्ड के हामिल अफराद के लिए 300 रुपए मुकर्रर है। यूटिलिटी स्टोर्स पर आए खरीदार परेशान, कहते हैं घी की अदम दस्तयाबी समझ से बालातर है। रोजाना चक्कर लगा रहे हैं लेकिन सब्सिडाइज्ड घी नहीं मिल रहा। 2 माह गुजर गए, आवाम को ओपन मार्केट की महंगाई के हवाले कर रखा है। कोई चीज़ भी मतलब आसानी से दस्तयाब नहीं है यहाँ पे। हमें बहुत परेशानी का सामना ऑयल की तरफ से भी, घी की तरफ से, मार्केट से हम खरीद नहीं सकते। यहाँ आना चाहिए या चीनी आनी चाहिए, घी हर चीज़ पे सब्सिडी देनी चाहिए उनको, मगर वो देते ही नहीं है। हम चक्कर लगा ला के थक जाते हैं कि घी आ रहा है, 2 माह से बिल्कुल घी नहीं आ रहा, तो हम बाहर से इतना महंगा घी है, हमें लेने में मजबूर हैं। यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडाइज्ड अशिया के लिए रेट तो मुकर्रर कर दिए गए हैं लेकिन उनकी दस्तयाबी का मसला जूं का तूं है। कैमरामैन उमैर रईस के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। बेलगाम महंगाई जारी, ब्रॉयलर गोश्त आवाम की पहुंच में ना सका। फल कुव्वत खरीद से बाहर, जबकि प्याज, लहसुन, अदरक भी खरीदना महाल हो गया। चंद मौसमी सब्जियों ने गरीब की 2 वक्त की रोटी का भरम भी रख लिया। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। महंगाई मुसलसल आउट ऑफ कंट्रोल। मार्केट में गोश्त और फल आम आदमी की पहुंच से बाहर। ब्रॉयलर के निर्ख में कमी ख्वाब होने लगी। ब्रॉयलर गोश्त बदस्तूर 647 रुपए फी किलो पर फरोख्त हो रहा। फार्मी अंडे भी 235 रुपए फी दर्जन की सतह पर बरकरार हैं। फलों में माल्टे और किन्नू 350 रुपए फी दर्जन तक पहुँच गए। केला दर्जा अव्वल 280 रुपए फी दर्जन है। अमरूद 150 और स्ट्रॉबेरी 500 रुपए फी किलो मिल रही। सब्जियों में प्याज 160, लहसुन 450 और अदरक 700 रुपए फी किलो दस्तयाब। मटर 150 और टमाटर 60 रुपए किलो में बेचे जा रहे हैं। अवाम कहते हैं अब तो मुंह के जायके के बजाय जेब का वजन देकर खरीदारी करनी पड़ती है। हुकूमत आम आदमी से जीने का हक ना छीने। गरीब आम ने की करना, खाना ते पीना है। सब्जी हो 100, 150, 200 रुपए तो घट किलो है कोई नहीं। और कीमत से इतने का लात तंग है कि घर में ना चूल्हा नहीं जल रहा। मौसमी सब्जियों के दाम से कुछ रिलीफ मिल रहा है। आलू, पालक, साग, मूली, शलजम और गाजर 40 से 50 रुपए फी किलो तक दस्तयाब है। अदलिया मुखालिफ बयान देने का मामला, मरीम नवाज के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत। जस्टिस शुजात अली खान ने रिमार्क्स दिए कि अदालत के पास किस तरह बराह रास्त तौहीन अदालत की कार्रवाई का इख्तियार है। अदालत ने दरख्वास्त काबिल समाअत होने पर वकील को कल दलाइल देने की हिदायत करती है। तफसीलात जानेंगे इस रिपोर्ट में। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शुजात अली खान ने राना शाहिद एडवोकेट की तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार के वकील ने अदालत को बताया कि सरगोधा में वर्कर कन्वेंशन के दौरान मरियम नवाज ने तकरीर करते हुए जजेस पर इल्जामात लगाए। मरियम नवाज की तकरीर से पूरी दुनिया में पाकिस्तानी अदलिया का वकार मजरूह हुआ। जस्टिस शुजात अली खान ने रिमार्क्स दिए कि अदालत के पास किस तरह बराह रास्त तौहीन अदालत की कार्रवाई का इख्तियार है। क्या ये अदालत सुप्रीम कोर्ट के जज की तौहीन से मुतल्लिक बयान पर कार्रवाई का इख्तियार रखती है। अदालत ने इस्तफसार किया कि किस कानून के तहत आपने तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की है। दरख्वास्त गुजार ने बताया कि आइन के आर्टिकल 204 के तहत तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की। अदालत मरियम नवाज समेत दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत का नोटिस लेकर कार्रवाई करे। लाहौर हाईकोर्ट ने वकील को बुध के रोज मजीद दलाइल देने की हिदायत कर दी। और मौजज़ा फन की सूरत अजायब घर लाहौर में जारी नुमाइश ने देखने वालों के दिलों को छू लिया।
नुमाइश में फैज़ अहमद फैज़, सूफ़ी गुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम और सादिकीन के आर्ट वर्क, तस्वीर और नवाज़रात ने अलग ही रंग जमा दिया। सुहेल कैसर की रिपोर्ट में मज़ीद देखिए। 3 शख्सियत और हर शख्सियत अपनी ज़ात में एक अंजुमन। फैज़ अहमद फैज़, सूफ़ी तबस्सुम और सादकैन। लाहौर अजायब घर में इन तीनों की शायरी, तस्वीर, नवादरात और आर्ट वर्क पर मुश्तमिल नुमाइश क्या शुरू हुई, गोया रोशनी के 3 मीनारों की चमक दमक आंखों को खीरा करने लगी। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो फैज़ साहब की फ़ैमिली से और इसके अलावा सूफ़ी गुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम की फ़ैमिली से ली गई हैं, जिसमें ख़ास तौर पे फैज़ अहमद फैज़ को मिलने वाले एजाज़ात, लेनिन पीस प्राइज़, निशान इम्तियाज़, उनकी ज़ाती ब्याज और इसी तरीके से सूफ़ी गुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम की हाथ से लिखी हुई चंद गज़लें, उनके ज़ेर इस्तेमाल रहने वाली बहुत सी अशिया, ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो अजायब घर के अपने ज़ख़ीरे में मौजूद नहीं थी। कहीं सूफ़ी गुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम की तस्वीर और उनके ज़ेरे इस्तेमाल रहने वाली अशिया ज़ीनत नुमाइश बनी हुई दिखाई दी, तो कहीं नुमाइश देखने वाले फैज़ अहमद फैज़ की नादर तस्वीर में गहरी दिलचस्पी लेते नजर आए। गोया इन शख्सियात के चाहने वालों की तो चांदी हो गई। वो चीज़ें जो सिर्फ हमने किताबों में पढ़ी हैं, उनकी अक्कासी यहाँ की गई है, तो वो एक लिंक बनता है आपकी स्टडी का आपकी एक्चुअल लाइफ से। फैज़ अहमद फैज़ को मैं स्पेशली देखने आई थी, ये मेरे पसंदीदा शायर हैं और यहाँ पे इनकी तस्वीरें वगैरह भी लगी हुई हैं इनके ख़ानदान के साथ। गालिब की शायरी पर सादकैन की बनाई गई पेंटिंग्स भी नुमाइश की जीनत बढ़ाती रहीं। इसके साथ साथ 48 पेंटिंग्स पर मुश्तमिल सादकैन की पेंट की गई सूरह रहमान देखने वालों की खुसूसी दिलचस्पी की हामिल रही। इनमें से मुख्तलिफ पेंटिंग्स काफ़ी खस्ताहाल हो चुकी थीं, जिन्हें बहाली के बाद पहली मरतबा नुमाइश के लिए पेश किया गया है। हर काम के अंदर मुश्किलात तो होती हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि आप उनसे गुजर के ही किसी रिज़ल्ट पे पहुंचते हैं, और सबसे ज़्यादा खुशी की बात यह है और मैं समझती हूँ मेरे लिए एज़ाज़ की बात है कि मैंने इतने बड़े नामवर आर्टिस्ट के काम को आइंदा आने वाली नस्लों के लिए रिस्टोर किया है। ये शानदार नुमाइश 15 मार्च तक अपने रंग बखेरती रहेगी। चश्मे तसव्वुर भी क्या कमाल की चीज़ है, इंसान को पल भर में कहाँ से कहाँ ले जाती है। और अगर इस सफ़र के दौरान माजी की कुछ यादें, कुछ बातें, नवादरात और तस्वीर की सूरत नज़रों के सामने मौजूद भी हों, तो गोया सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ सुहेल कैसर, लाहौर न्यूज़। और इसी के साथ इस बुलेटिन से इतना ही। आप देखते रहिए लाहौर न्यूज़ या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट lahorenews.hd।